کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیسے جیسے بیانات آتے ہیں تو اس کے بعد عام جو خام تیل ہے عام مارکیٹ میں اس کی قیمتوں میں بھی فرق پڑتا ہے، لیکن ابھی جو چیز سامنے آ رہی ہے ایک بار پھر خام تیل کی قیمت میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمتوں میں 1.9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوران ٹریڈنگ WTI کروڈ کی قیمت 92.10 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی ہے۔ بالکل ایسی ہے، اور اگر ہم برٹش برنٹ کروڈ آئل کی بات کریں تو وہ 103.92 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے کہ جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ فلکچویشن آ رہی ہے۔ بالکل، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے نہ صرف بین الاقوامی معیشت بلکہ پاکستان کی اکانومی بھی کافی متاثر ہے۔ تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا قیمتی وقت آپ نے سما کو دیا۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اپریل تک ذخیرہ اس کے پاس ہے تیل کا، آپ کے خیال میں حکومتی اقدامات کیا درست ہیں، اور مستقبل میں اپنی فیول کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، ایک تو بات سامنے یہ آ گئی ہے کہ یہ 1973 کے بعد ایک سب سے بڑا گلوبل آئل شاک ہے جو دنیا کی ساری اکانومیز نے، اسپیشلی ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا نے، جو کہ مڈل ایسٹ پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے، اس نے لیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ US نیٹ ایکسپورٹر ہے انرجی کا، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ رشیا، ناروے، ان کنٹریز نے گین کیا ہے، اور آبویسلی مڈل ایسٹ کی اکانومیز بہت ہرٹ ہوئی ہیں، یورپ نے بھی ہرٹ لیا ہے۔ گیس پرائسز، آئل پرائسز جب اوپر جاتی ہیں، پاکستان نے بہت سے اینگل جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا چینلز امپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو۔ پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک تو سب سے بڑا آبویسلی ہم امپورٹر ہیں انرجی کے، 16 سے 18-20 ارب ڈالر LNG فاسل فیول امپورٹ کرتے ہیں، جس میں پیٹرولیم پروڈکٹس بھی شامل ہیں۔ پاکستان کو سب سے بڑی ہٹ آف کورس ایک یہ ہے کہ انفلیشن، جیسے ہی 55 روپے آپ نے قیمت بڑھائی، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ بڑھانی پڑے گی اس جمعے کو، اس کی وجہ بڑی سادی ہے۔ آبویسلی آپ نے برینٹ کی قیمت بتائی، یہ پیپر ٹریڈ ہو رہا ہے جو برینٹ آپ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ ایکچوئل قیمت جا کے دبئی کی دیکھیں، دبئی برینٹ کی، اور جو پلیٹس پاکستان سنگاپور کی پرائس لیتے ہیں ہم، وہ اس سے بھی زائد ہے۔ تو آبویسلی ایک قیمت میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ دوسری، پاکستان کی آف کورس اکنامک گروتھ ہرٹ ہوتی ہے جب بھی قیمت اوپر جاتی ہے چیزوں کی، جب بھی ڈیمانڈ سلو ہوگی۔ اور اب جو مانیٹری ایزنگ ہوئی تھی، یاد رکھیے کہ اگر انفلیشن جو کہ 7% تھی فروری میں، یہ آلریڈی ایلیویٹڈ تھی جنوری سے، جو کہ جنوری میں 5.8 تھی، اور اب اگر ڈبل ڈیجٹ کے قریب جاتی ہے تو جو آپ کی مانیٹری پالیسی 10.5% پہ پالیسی ریٹ ہے، وہ تبدیل کرنے کی شاید ضرورت پڑ جائے گی، اور کوئی ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹمنٹ تو بالکل نہیں ہوگی۔ تو جو مانیٹری ایزنگ ہے جو لوگ سوچتے تھے وہ نہیں ہو پائے گی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کے بل تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ گروتھ کا چینل دیکھ سکتے ہیں، اگر ریمیٹنسز پاکستان کی ہرٹ ہوتی ہیں، ریمیٹنسز 22 ارب ڈالر کی ریمیٹنس جو ہے وہ آتی ہے اس وقت گلف کنٹری سے۔ اگر 40 ارب ہماری ٹوٹل ریمیٹنس ہے تو اس میں سے 22 ارب ڈالر، یہ 55% ہے، 65 لاکھ پاکستانی کام کرتا ہے مڈل ایسٹ میں۔ تو یہ وہ چینلز ہیں جو پوری اکانومی کو امپیکٹ کریں گے۔ پاکستان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے، میں ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آئل امپورٹنگ کنٹریز اپنی ڈیمانڈ کو سنبھالیں۔ ہم نے ڈے 11 پہ جا کے ڈیمانڈ میجرز لینا شروع کیے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ہم بہت پہلے اپنے ڈیمانڈ میجرز لے سکتے تھے، بس یہ چیز تو دکھائی دے رہی تھی کہ یہ 2-4 ہفتے تو ویسے ہی کانفلکٹ چلے گا، جو کہ چلا ہے۔ اب تھوڑا سا تصفیہ کی طرف گیا ہے، تو برینٹ کی قیمت 102 آپ نے بتائی، یہ 115 119 چلی گئی تھی۔ کچھ بیان دونوں طرف سے آ رہے ہیں، ضرور پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے، ٹرکی ایک رول پلے کر رہا ہے، جس میں ایک آپس میں تصفیہ کی کوشش ہے۔ ڈیمانڈ کے میجرز لیں، اپنے جتنی کنزرویشن کر سکتے ہیں کنزرویشن کریں، جتنی قیمت کا پاس تھرو کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں، اور جو 390 ارب روپے کا کنٹینجنسی ہے بجٹ میں اس کو یوز کریں۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک اور آپ کو جو امپیکٹ دکھائی دیا ہے کہ 100 ارب روپیہ پاکستان کا جو فیڈرل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے۔
अब जब 100 अरब काटता है तो कोई रोड नहीं बनेगी, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी कम होगी, कोई वाटर रिसोर्सेज कम होंगे, आगे ये टोटल 1000 अरब का हमारा पीएसडीपी है। इसके साथ साथ प्रोविंसेस को भी कुछ अपने 2200-2300 अरब के जो पीएसडीपीज हैं उनको कटौती करनी पड़ेगी। सो ये इम्पैक्ट तो लोगों की जिंदगी पे भी और जैसे कहेंगे डेवलपमेंट बजट्स पे भी। पर असल बात तो ये है कि जो आपने बात की ना वो इम्पोर्टेंट है आखिर में करना जरूरी, कि जारी इखराजात यानी कि एक्सपेंडिचर कंट्रोल्स, और दूसरी बात यह है कि तेल के 28 दिन के जखायर थे जब इस वॉर में गए थे, तो ये तो नहीं हो सकता कि 60 से 90 दिन से कम के जखायर हों जब आप डिपेंडेंट हो एनर्जी पे। फिर हम सारा अपना फ्यूल कैरी करते हैं कहाँ पे? हम फ्यूल कैरी करते हैं रोड्स पे। तो हमें क्यों नहीं ऐसा करना कि हम पाइपलाइंस बिल्ड करें? हमें क्यों नहीं ऐसा करना कि हम अपना फ्रेट जो है वो रोड्स पे कैरी करने की बजाय कैरी करें थ्रू रेलवे? बिल्कुल। अच्छा खान साहब, ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि इन चीज़ों का एक जो हम हो रहे हैं, जो हालात वाक़यात मंजरनामा बना हुआ है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है, लोगों की ज़िंदगियों पर भी आ रहा है और बहुत सारे दीगर शुबों पर भी आ रहा है, और उनमें से एक बड़ा जो अहम फैक्टर है ना वो तालीमी इदारों की बंदिश वाला है। तो आपको क्या लगता है कि जो तालीमी इदारों की बंदिश है या जो दीगर इकदाम किए जा रहे हैं, इनका अब इजाला कैसे मुमकिन होगा? और साथ ही अब ये भी हम सुन रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि हर शहरी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो पेट्रोल फराहम किया जाएगा, उसके लिए कोटा मुकर्रर करेगी हुकूमत। तो आपको क्या लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा दुरुस्त अंदाज में? मतलब ग्राउंड रियलिटीज क्या है आपकी नजर में? की बात कर लेते हैं। देखिए, जब मैं कुछ ममालिक को एडवाइस करता हूँ, और उनमें से एक मुल्क में तो पहले ही राशनिंग की तरफ हम बढ़ गए थे, और वो बढ़ इसलिए गए थे कि दो वजह हैं। एक तो ये कि अगर लोग अपना जैसे कहते हैं ना बिहेवियर नहीं तब्दील करेंगे, आप उसी तरह मार्केट जाती रहेंगी, ये बगैर रियलाइज किए कि 3 दफा मार्केट नहीं जाना। आप अपना जो जैसे कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न जो है उसको तब्दील करने के लिए आपको या तो प्राइस हाइक करनी है, वो आपने एक दफा की है, शायद दोबारा करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि आपको हम इतना तेल फराहम करें। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है कि ये जो अभी जिस मुल्क के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने 14 लीटर की लिमिट फिक्स की थी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इस पे या तो आप तेल ही इतना लें या इसको एक सब्सिडाइज कर दिया जाए, जिसका क्या मतलब है कि मैं पहले कहता हूँ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो मैं पूरी आपकी गुफ्तगू में कहने वाला हूँ। पेट्रोल को सब्सिडाइज नहीं करते, सब्सिडाइज लोगों को किया जाता है। द मिस्टेक दैट वी मेड इनिशियली इज कि हमने 70 अरब रुपया पेट्रोल प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज करने में खर्च कर दिया। दैट इज नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। बट लोगों को, रिक्शा वाले को, टैक्सी वाले को, मोटर बाइक वाले को, बिस्प जो कि हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें 10 मिलियन हाउस होल्ड हैं। हमारा ओवरऑल डेटा शायद हमारे पास इससे भी बहुत ज्यादा है, यानी कि 30 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा है। वो डेटा उन पॉवर्टी वालों को आप सब्सिडाइज करते हैं। तो हमने अच्छा कदम उठाया, कोशिश की है। अब इन मेजर्स को स्ट्रेंथन करना है, डायरेक्ट सब्सिडी पे जाना है, और अगर ये जंग अगले महीने 2 सेटल नहीं होती, मतलब तस्वीर की तरफ तो जा रही है जरूर, ये अच्छी बात है, पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, तो तेल की कीमत एलिवेटेड रहेगी, और एलिवेटेड कीमत से लोगों को शील्ड करने का जो तरीका है वो हमें सोचना है। देखिए, पाकिस्तान में जब तक हम लॉन्ग टर्म मेजर्स, ये सारी वो डिमांड मेजर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के हैं, पर अब स्टोरेजेस बिल्ड करने से लेके डोमेस्टिक एनर्जी ट्रांजिशन तक, हमें इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी तक वो काम करनी है जो हमें कोविड के बाद तय किया था करेंगे। और जब भी फायर लेकिन बदकिस्मती ये है ना डॉक्टर साहब के वो जो हमने चीज़ें तय की थी कोविड के बाद, वो उनको अभी तक हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सके हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आपसे इसकी तरफ भी तवज्जो चाहूँगा कि तवानाई और ईंधन की बचत के लिए 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की भी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ है, जिसमें सरकारी दफातर में 2 हफ्ते 2 दिन ऑनलाइन काम की तजवीज़ है। स्टाफ का 50% सिस्टम करने की तजवीज़ है कि यानी 50% सिस्टम, एक दिन 50 लोग आएँ और फिर 3-4 दिन के लिए ऑफिस को खोला जाए, तो गैर ज़रूरी इस्तेमाल के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना किया जाए, और सीनियर सरकारी अफसरान के लिए कंबाइंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ है। बाज़ार और शॉपिंग सेंटर रात को जल्द बंद करने की भी तजवीज़ है। शादी हॉल्स को भी बंद करने की तजवीज़ है। सिर्फ 200 मेहमानों को लेकर आया जाए और वहाँ पर भी सिर्फ जो मेहमानों की हद है वो 200 की जाए और 1 डिश सिस्टम इस्तेमाल किया जाए। तो हुकूमत की जानिब से जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि वो बेहतर हैं और इनके ऊपर अमल दरामद करके हम कुछ बचत कर सकते हैं, ये किफ़ायत शेयरी मुहिम आगे बढ़ा सकते हैं, ये कामयाब हो सकती है डॉक्टर साहब इन हालात में?
तो देखें दो बातें हैं, एक तो ये है कि इन तजावीज़ को हमें डे 2 पे इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था। अच्छा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने बिल्कुल ऐसी ही 10 तजावीज़ जो हैं आज से चंद दिन पहले दी थी, और वो इसीलिए दी गई थी कि और हमें दुनिया में देखना है कि दुनिया कैसे इस चीज को हैंडल कर रही है, और उन्होंने ये तजावीज़ इसीलिए दी थी कि जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो अपना तेल नहीं बनाती और अपनी जो तेल की जरूरियात है उस पर डिपेंडेंट है, उनको अपने डिमांड की जो मेजर्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली पहले ही ले लेने चाहिए। सो ये तजावीज़ ऑन द शॉर्ट होराइजन करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और इनका निफाज बहुत स्ट्रेंथ से पब्लिक सेक्टर में भी और इनका निफाज प्राइवेट सेक्टर में भी और लोगों की जिंदगी में कम्युनिकेट करके भी करना चाहिए। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं समझता हूँ कि लोग शायद इस शौक की नौयत को समझ नहीं पा रहे, और वो शायद रूटीन जिंदगी में चाहे वो ईद की शॉपिंग कर रहे हो, करनी चाहिए, ठीक है, बट वक्त उनको अपने घर को बचाने का इसलिए है कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनका जब बिल आएगा, बिल्कुल ऐसे जो हालात हैं वो डेफिनेटली मजीद जो वर्स होते जाएंगे। अच्छा, लास्टली ये भी कमेंट कीजिएगा खाकान साहब कि जो हम देख रहे हैं हालात वाकयात बने हुए हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई की एक नई लहर आने का खदशा है, और हुकूमत को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में किन इकदाम उठाने की जरूरत है? IEA के 10 मेजर्स हैं, जिसपे स्पीड लिमिट से लेके वर्किंग प्रमोशन घर से, वो अप टू 3 days a week कह रहे हैं, कार फ्री संडे, इसी तरह ऑड इवन गाड़ियां, एनकरेज जिसे कहते हैं कार पूलिंग, राइड शेयरिंग, चीपर और एक्सप्लेन्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई मीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप टारगेट करके सस्ता करें और लोगों को उस पर मूव करें, फिर जैसे कहेंगे आप इंक्रीज यूज ऑफ ऑयल नॉट ऑन द रोड्स बट ऑन द जिसे कहते हैं ट्रेन, जितना भी कर सकते हैं। बिजनेस ट्रैवल को बिल्कुल कम कर देना चाहिए, अवॉइड करा देना चाहिए, या उस पर कदरन लगा देनी चाहिए एक तरह से। इलेक्ट्रिक पे जाएं, LPG से निकलें। पाकिस्तान पे आज भी बिजली बनाने की ताकत है जो सोलर ने, और हम LNG से निकल गए हैं, सिर्फ 15% से बिजली बन रही है, और अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग करके आप वो 15% भी बचा सकते हैं तो जरूर बचा लें। और फिर ओवरऑल एफिशिएंसी मेजर्स, यानी कि बिल्डिंग्स में कैसे ले सकते हैं उनको लें। पेट्रोल की राशनिंग करने की अगर जरूरत है तो जरूर कर दें, इससे लोगों के पैसे भी बचेंगे। अगर वो चौथे और 5वें दिन दफ्तर नहीं जाएंगे तो उनकी मोटरसाइकिल का जो बिल है वो बचेगा। इससे एक और लॉन्ग टर्म चीज सामने आज आ गई है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी बिकम सो इम्पोर्टेंट, उन बच्चों के लिए भी जिनके स्कूल में सो रहे हैं, उन हजरात और खवातीन के खाकान लिए नजीब साहब, बड़ी तफसीलन आपने हमें वो तरीके बताए कि जिनके ऊपर अमल दरामद करके हम इन हालात में अपनी मईशत को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब। और